आपने अभी रिसेंटली मेरे फर्स्ट लुक में देखा होगा वो Yes. झोपड़ी, वो उसमें कुछ हमने आपको वो मूर्ति जो कुछ छोटी-मोटी आपने देखी होगी। तो जो एक ट्रीटमेंट है और हमने रियल एनवायरनमेंट में से शूट किया। हमने स्मोक क्रिएट करके कोहरा नहीं बनाया। हमने कोहरे का वेट किया, फिर उसमें शूट किया। आप खुद सोचिए, मैं आपको एक यूपी के छोटे से गाँव में, वहाँ साइ-फाई चल रहा है। यूपी के छोटे से गाँव में जहाँ बकरियाँ ऐसे रास्ते में चल रही होंगी, है ना? लोग अगर आप वहाँ बैठ जाएँ, अगर थोड़े से सूट में बैठ जाएँ, तो लोग आपको जो है ऐसे बैठ के देखने लगेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। बढ़िया भोजपुरी मिली है इसमें आपके, तोरा समोसा मजा ना रह गइल ना, तोरा आलू तन ढेर डाला यार, तोरा मजा नहीं आवत। Today we have a complete package of art with us, an actor, a director and a pure soul. This is your host Harsh Rajput and welcome to Dainik Jagran. And let's get into the world of Baida with actor Sudhanshu Rai and director Puneet Sharma. So Sudhanshu, my first question will be from you, from all the sci-fi lovers. How dark and intense is Baida? See, I'll say it is more intriguing. Dark is something which we have already seen. So we try to create something which is more mysterious, wherein with each and every minute you can see that the story is driving you somewhere. You are exploring a universe. So I'll say it is more intriguing, mysterious. You may have not seen anything like that. It is based upon, as you know, one of my most best-selling story. So we thought of like converting this as per the demand of fans, followers, and first look is already out. We can see people relating to it, mentioning that yes, it is dark. So dark is something which I'm already known for. So I wanted to explore something beyond the dark. And what about sci-fi in this movie? So yes, the genre goes for sci-fi. We have an essence of parallel universe, or we can say a dimension. I don't want to spoil the nature of the movie currently, revealing something like that. But yes, you will find something when it comes to parallel universe or a new dimension. So, Puneet, my next question will be from you. Recently, we have seen that Tumbad also got a massive engagement when it was re-released. Right. And do you think that Indian audience, especially, are ready for such kind of content, such kind of dark stories? Right. I feel like Indian audience was always ready. It was just that they were not being served such stories, right? And you can see the success of cinema of Nolan. I think people are like crazy about that. You can see recently also like the Interstellar is again re-releasing, and like I think it will go houseful. Yeah. Tumbad like did amazing business. So I think that it's just dearth of such stories. Audience is always ready. All audience is now more aware also with the advent of OTTs and like international cinema coming in. So audience is now more aware. They're ready for such stories. It's just that I think we need to cater to this audience with now our own way of delivery. That is like the Indian cinema or Hindi cinema delivering such stories to the audience. So that just needs to cater to that demand. Yes, the people are ready. सुधांशु, क्या बायदा में भी वही स्टोरी जो हमने बचपन में नानी दादी से सुनते थे, भूतों वाली कहानी, या कुछ और है, साई-फाई और टाइम ट्रैवल, क्या कुछ पता, हमें हिंट दो आप। और भी भयंकर बट फिर भी कुछ तो होगा। नानी दादियाँ हमें ज़्यादा डराती भी नहीं थी, पता चले कि बच्चा डर के भाग ही जाए या दोबारा कहानी ना सुने। सो बेसिकली हम लोगों ने ऐसा यूनिवर्स, देखिए क्या होता है कि एक राइटर जो है, या मैं बेसिकली राइटर भी हूँ, तो मैंने कहानी लिखी है पूरी एक, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा इमेजिनेशन लेके आए लोगों के सामने जो लोगों ने इमेजिन ही नहीं किया, लोगों ने देखा ही नहीं हो। आप खुद सोचिए, मैं आपको एक यूपी के छोटे से गांव में, वहाँ साइ-फाई चल रहा है, यूपी के छोटे से गांव में जहाँ बकरियां ऐसे रास्ते में चल रही होंगी, है ना? लोग अगर आप वहाँ बैठ जाएं, अगर थोड़े से सूट में बैठ जाएं, तो लोग आपको जो है ऐसे बैठ के देखने लगेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। तो ऐसी जगह अगर साइ-फाई चल रहा है, एंड प्लस डार्क भी है,
है ना। तो डार्क, अब उसमें फॉरेस्ट भी है। आपने देखा होगा फर्स्ट लुक में हमने कहीं ना कहीं एक फॉरेस्ट के अंदर एक पूरा एक लैंटर्न वाला सेटअप बना रखा है। आज भी अगर आप किसी विलेज में, गोरखपुर के बड़े किसी लोकल विलेज में आप जाते हैं तो वहाँ लाइट होती है, लेकिन बहुत हर जगह नहीं होती है। तो अगर कहीं बीच से आप निकलना चाहते हैं, कहीं रोड भटक गए आप, क्योंकि कोहरे में आपको कहीं कुछ दिखता नहीं, आप दिल्ली में नहीं देख पाते हैं, हाँ. तो वहाँ हमने इसे कोहरे में शूट किया है, रियल कोहरा। हमने कोई हम्म। स्मोक यूज़ नहीं किया है। हम वेट करते थे कि कोहरा आएगा, फिर हम शूट शुरू कर रहे And how challenging it was to connecting with the audience. Like we heard that ki this movie was shot in Gorakhpur, and Gorakhpur is also your hometown. And you went to Gorakhpur for the first time. I think you are from Delhi. Yeah, from Delhi. And how much challenging it was for like shooting with those kind of audience who were totally new to this kind of setup and all. देखिए उनके लिए तो ऐसा होता है कि जैसे कोई मेला चल रहा है, मतलब फलाने के वहाँ भैया फिल्म आई है, फिल्म शूटिंग चल रही, चलें देखने। पूरा परिवार आता था कंबल उम्बल ओढ़ के, है ना। मेरे ख्याल से कुछ लोग तो खाना वाना भी लेकर आते हाँ हाँ आराम से बैठ के आराम से खाएंगे। पूरा माहौल देखेंगे। यस। तो उन लोगों के हिसाब से होता था कि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम एकदम नजदीक जाके ही बैठ सकते हैं। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं मेरे पीछे आके, भैया एक फोटो हो जाए, तो मैं बोलता था शूटिंग चल रही है भाई है ना। अभी वो देखो, जब वो बोल देंगे एक बार एक्शन, तो आना नहीं है इस एरिया में। तो भोले होते हैं लोग, बट एक फेस्टिव माहौल हो जाता है उनके लिए। ऐसा लगता है कि उनके गांव में अब करीब जो है 20 दिन 25 दिन पूरा मेला लगा है, हम बच्चों के साथ शाम को जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग दोपहर में भी आते थे, तो जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों के पास सिंपल टाइम होता है वहाँ पर कि वे दोपहर में भी एक्सप्लोर करें। तो चैलेंजिंग मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरा खुद का गाँव है, सब लोग मुझे जानते हैं, लोग कोऑपरेट करते हैं। लेकिन नादानियों में कुछ ऐसा नुकसान हुआ हमारे साथ। एक बड़ा अच्छा शॉट हमने निकाला था, रात का टाइम होगा, मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे होंगे, रात का 2:30 साढ़े 3 बजे। यस, वो कंटिन्यूअस मतलब चलना था। 15 मिनट लगातार चलना था। 15 मिनट लगातार मतलब वो हाँ वो दैट यही जंगल का सीन बता रहे हो क्या हाँ, आप? लगातार चलना, मतलब कोई हाँ, कट है ही नहीं कट उसमें। नहीं था। इट वाज अ कंटिन्यूअस शॉट जिसमें मतलब देयर इज नो कट। सो चल रहा है चल रहा है। मेरे ख्याल से मैंने 12 मिनट कर लिया होगा, और अचानक से चिकम चिल्ली हो रही है, ये चिल्ला रहे हैं, कह रहे ये कौन है। पीछे से कोई जाके ऐसे झांक के जो है अंदर देख रहा है क्या चल रहा है। तो मैं बोला हाँ आ जाओ, तुम भी आ जाओ इनको भी ले लो। तो नादानियों में थोड़ा सा हमें ये छोटे चैलेंजेस होते थे, पर जो बड़ा चैलेंज बोलेंगे वो नहीं था। सपोर्टिव लोग थे। कहीं हाँ, हाँ। किसी घर के बाहर हम शूट कर रहे हैं तो लोग पूछ भी लेते थे, भैया चाय लेवा, भैया पानी पीवा, गर्म पानी दे दें, तो बड़ा अच्छा वो लगता था। भोजपुरी का टोन ही एकदम अलग होता है, मजा आता है सुनने में। मजा आता है। नहीं मजा आता। लोगों के लिए भी लर्निंग थी। आई थिंक फर्स्ट 1-2 दिन का थोड़ा ज्यादा था, Teething issue फिर रहता लोग यूज्ड टू भी हो गए कि ये है, अब नहीं आना है, कैमरा के बीच में नहीं आना है, पीछे से देखना है। तो लोग धीरे धीरे सीख गए। आई थिंक 10 दिन 15 दिन में तो दे वर आल्सो द एक्सपर्ट्स कि And कैसे चल Puneet, रहा है। my next question is for you. Like we all know that entire Bollywood is struggling to connect with Gen Z audience. Do you think that this movie is going to connect with the Gen Z audience? This movie is definitely going to connect with the Gen Z audience, right? Because after a long time, a movie is coming that is, see, sci-fi is fine, supernatural is fine, but here the story is the king. What I feel like Gen Z want to look for new stories which are told in a new perspective, and that And is when I ask you, what is this new perspective? yes, new perspective would mean serving something which they might not have experienced till now, right? Again, not taking them for granted कि if something is popular, कुछ चीज चली रही है तो वही फिर से सर्व कर दिया जाए, वैसा नहीं है। एकदम अलग तरीके से डिफरेंट स्टोरी विद न्यू जॉनरास। नाउ यू सुपरनैचुरल इज फाइन, बट साई-फाई कितना हिंदी सिनेमा में अभी तक आया है? यू हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। Have you seen the web series Dark on Yes, Netflix? yes. And I think in recent times, what exactly is sci-fi and time travel? I think that series have depreciated very well. Is Baida is somewhere close to Dark? I'll say yes, it is in terms of treatment. Yes. When I'll say that the shock moment is there. There will be a moment when the audience will be shocked at a point in time कि भाई अभी तो स्टोरी चल रही, ये क्या हो, है ना। दैट शॉक विल बी देयर। डार्क में भी वही शॉक था, क्योंकि डार्क में आप देख रहे हो वो शुरू ही होता है, एक बंदा हैंग कर रहा है अपने आप को, देखा होगा, है ना। फिर वो बच्चा गुम हो जाता है। बच्चा गुम हो जाता है।
तो वो एक शॉक मोमेंट आपको देना पड़ता है, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है जब मूवी शुरू होती है, शुरू के 2 मिनट में ही मैं आपको वो शॉक दे दूंगा। उसके बाद आपको आप वेट करोगे कि अब ये हुआ क्या, देन इन अनदर 10 मिनट्स विल गिव यू अनदर शॉक। सो हमारा कहना है कि यस, you will find something, some treatment of dark when it comes to the overall perspective of what we call as parallel universe or dimensional approach, but we are way beyond Yes. those perspectives. Dark- कुछ ऐसी चीजें yes. बताऊंगा जो शायद ही हम लोगों को पता होंगी, right? तो वो चीजें भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो शायद ही लोगों ने इमेजिन की होगी कि ऐसा भी होता है, जो हमारे सेंट्स वगैरह करते थे। आपने शवासन का नाम सुना होगा। योगा में क्या होता है, एक मेडिटेशन बेसिकली एक फेज होता है जिसमें अगर आप किसी एक अच्छे टीचर के सानिध्य में कार्य करते हैं, तो आपको लिटाएंगे, आपकी बॉडी को उस लेवल पे रिलैक्स कर देंगे कि आप चाहकर भी अपना एक फिंगर तक मूव नहीं कर पाएंगे। योर बॉडी विल बी लाइक अ डेड बॉडी, है ना, इट्स अ साइंस। एंड वो कहते हैं कि सेंट्स जो हैं वो अपनी सोल को ट्रैवल कराते थे। शवासन इसीलिए बोला जाता है ना कि आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स कर जाती है। तो आई थिंक वी विल गिव यू न्यू पर्सपेक्टिव्स, we'll give sci-fi a new dimension altogether. What it all means. You were telling something. I'm so sorry, I was blocking you. No, nothing. But like Dark is a good example. That is a very well made series. आप जो एक सेटअप देख रहे हैं, हम लोग चाहते थे कि लोग कनेक्ट कर पाएं, लोग बोल पाएं कि यस हमने डार्क देखी है, हमने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है, या हमने, अगर हम फील या ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने तुम्बाड़ देखी है, चुरुली देखी है। अब लोगों ने खुद लिखा है, हमने कहीं कुछ नहीं लिखा। आप अगर कमेंट सेक्शन में जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे, आप देखेंगे भी जिन लोगों ने देखी उनके रिस्पॉन्सेज हैं, लोगों ने लिखा है कि वी आर गेटिंग चुरुली वाइब्स, वी आर गेटिंग ब्रह्मयुगम वाइब्स, वी आर गेटिंग तुम्बाड़ वाइब्स। तो हमें लग रहा है कि हमने सक्सेस हासिल करी है। बट जो एक फैक्टर है जो हमें बहुत ही अलग कर देगा, वो आप टीजर ट्रेलर में देखेंगे। हाँ। क्योंकि अभी आपको कहीं ना कहीं वो वाइब्स दिख रही है, लेकिन हम वाइब्स को एकदम ही और ऊपर लेके चले जाएंगे, जो एक नया ट्रेंड होना चाहिए हमारे हिसाब से। तब शायद हो सकता है जब हम इसको रिलीज कर दें, लोग तब ये बोलें कि यार ये बैदा वाली वाइब्स लगी। हाँ, आगे जाके होना यस कि हाँ ये किस फिल्म की बैदा की वाइब्स है। ये that is important. Sudhanshu, talk us through your journey as a storyteller, then as an actor, then as a YouTuber, and now you are going at the big theater. See, we always wanted to present stories. Yes. और हम लोगों को ऊट पटांग स्टोरीज लिखने का और प्रेजेंट करने का बड़ा शौक होता था, लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। Yes. कैसे करें? अगर आपको याद हो, एक जापान में इंसिडेंट हुआ था। एक बंदा एयरपोर्ट पे आता है, 1980s की बात है ये। वो इमिग्रेशन काउंटर पे जाता है, लोग उसका पासपोर्ट देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पासपोर्ट जिस कंट्री का था वो कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो उस बंदे को वो लोग निगरानी में रखते हैं कि मे बी ही इज सम फ्रॉडलेंट एंटिटी, और मे बी कुछ खतरनाक टेररिस्ट भी हो सकता है, कुछ ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। उसको होटल में रखते हैं और रात को 2 बजे गायब हो जाता है बंद रूम से। दिस इज अ रियल स्टोरी, यू कैन गो एंड चेक। सो हमने अब इस तरह की स्टोरीज से हम इंस्पायर होते थे कि यार ये मूवी में अगर ये सेटअप होता है, या अगर आप इस स्टोरी को और एक्सटेंड करते हो, तो मैंने इस स्टोरी को एक्सटेंड किया है, फिर इससे इंस्पिरेशन लिया है कि वो आया बंदा। इस कहानी का नाम मैंने दिया है द मिसिंग मैन, यस, द मिसिंग मिस्टर क्वात्रोची। राइट, यू मस्ट लिसन। तो हम लोगों को एक तो पहले जो दिमाग में ये सब पड़ा हुआ था कि ऊट पटांग जो स्टोरीज हैं, जो अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज है, जो लोग सोच भी नहीं सकते, उस तरह की स्टोरीज हम कहाँ से लेकर आ सकते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक सी स्टोरी है। तो उसके बाद हमारे पास ऐसी स्टोरीज भी हैं कि एक बंदे को रात को फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाता है, कोई बोल रहा है कि जल्दी निकल जाओ, तुम्हें वो लोग पकड़ लेंगे। वो नीचे देखता है कुछ लोग जंजीरें वगैरह लेके आए हुए हैं और वो पूरी नील्स वगैरह लेके आए हुए हैं। वो खिड़की से उतर के भागता है, गाड़ी से निकल रहा है, जहाँ से उसकी गाड़ी गुजर रही है लोग उसे देख रहे हैं, बड़े आश्चर्य में बोल रहा है भाई साहब लोग ऐसे मेरे को घूर क्यों रहे हैं। उस बंदे ने उसे कहीं बुलाया होता है, वहाँ जाता है, उससे मिलता है, वो बोलता है तुम मर चुके हो भाई, मतलब तो बोलता है आई एम अलाइव, आई एम इन फ्रंट, बोलता है तुम अलाइव नहीं, तुम्हारी बॉडी भी वहीं पड़ी हुई है, इट इज योर सोल आई वाज सेविंग। राइट, सो ऐसी स्टोरीज, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमने बनाए हैं। तो हम लोग चाहते थे, सो वी स्टार्टेड राइटिंग, वी स्टार्टेड नरेटिंग। लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि मैं रेडियो से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे वो मॉड्यूलेशन वगैरह आता था। Yeah, and right from radio, how important your journey with radio is helping you now? और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऊपर से अगर मैं तो गोरखपुर से हूँ सर, तो मेरा ना श और स का तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं बड़ा ध्यान से ना अपने वक्तव्य को पकड़ कर चलता हूँ वहाँ पर। अब वहाँ पे ये भी बता दिया, जैसे हम लोग जहाज बोलते हैं, जहाज, वो जहाज नहीं होता है, जहाज होता है।
राइट. सो ये पर्सपेक्टिव्स ना ये हमें नहीं पता होते थे. अब रेडियो में सिखाया जाता है कि नुक्ते क्या होते हैं, है ना. ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सब यहीं से तो रेडियो ने वो परिपक्व किया हमने. तो जब मैंने पुनीत से बोला कि अब लिखते हैं और नरेट करते हैं, तो उसने बोला नरेट कैसे. मैंने भाई चिंता मत तेरा भाई बैठा हुआ है. तो हमने स्टोरी शुरू करी. Yes. हम Stood. within 6 to 8 months we started getting popular. Yes. People started liking us. तो उसके बाद फिर जब 1-1.5 साल बीत गया और रेडियो वगैरह पे भी जर्नी शुरू हो गई, तो बोला अब टाइम आ गया है कि अब हम वो करें जो हम करना चाहते थे. बिकॉज अपना धंधा चालू करते हैं मूवी में. तो पुनीत मतलब विजुअल में जाए अब. विजुअल में जाए. पुनीत मेरे को पहले से ही बोलता था कि यार हमें फिल्म बनानी, लेकिन फिल्म बनाने का तरीका नहीं पता है ना. क्योंकि हम जिसके पास जाते थे वो बोलता है कि आपके पास 15 करोड़ रुपए होने चाहिए, आपके पास डायरेक्टर होना चाहिए. अब डायरेक्टर हमने कैमरा कभी उठाया नहीं था, तो आपके पास राइटर होना चाहिए, स्क्रीन प्ले डायलॉग अलग लिखते हैं, ये होता है, आर्ट होता है, कॉस्ट्यूम होता है. हमने कहा यार ऐसे तो फिल्म कहीं बना ही नहीं पाएंगे. फिर आया कोविड का फेज और मैं उस टाइम पे आई वाज लाइक क्रेजी. मैं बोला भाई अब शूट करेंगे, हम खुद ही कैमरा उठा लेते हैं, खुद ही शूट. We'll do it. लकीली मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, हिज नेम इज अनंत राय. वो मुंबई में 10 साल गुजार चुका था. तो उसने बोला भाई ऐसे नहीं होता है, कैमरा उठा के लेके चल रही है, लाइट चाहिए होती है, फोकस पुलर चाहिए होता है. इट्स टेक्निकलिटीज हैं. ओके आई विल मेक यू लर्न. तो इसके बेसमेंट में हमें कहानी लिखना आता था, हमने कहानी सॉल्व की, तो हमें पता था कहानी was क्षेत्र के हम हाँ, yes. थोड़े तेज खिलाड़ी बन चुके थे तब तक, क्योंकि तब तक मेरे ख्याल से 200 कहानी में लिख चुका था. और ऐसे यूं लिखी थी कहानी, मुझे याद है. 10 मिनट 15 मिनट आप बोलोगे मैं कोई फोन पे आई थिंक वी आर डिस्कसिंग, हमने फोन पे कनेक्ट करा कि कुछ करते और फोन पे ही कहानी एक हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया था विद इन 15 मिनट्स. आपकी कहानी रील्स वगैरह में बहुत वायरल होती है. एंड मैं जब देखता हूँ आई वाज लाइक कि लूप पे चलते रहता, मुझे पता नहीं चलता दोबारा चालू हो गया है. तो वो एक्चुअली लोग कहते हैं कि थोड़ी वॉइस भगवान ने दी है, तो वो क्या आवाज किया आपने इस वॉइस की? सर कुछ नहीं किया, गॉड गिफ्टेड है. मैं तो कहता हूँ बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि बड़ा सक्सेसफुल आदमी है और उसने बड़ी मेहनत करी होगी. मुझे नहीं लगता मैंने इतनी मेहनत करी है सर. इट्स गॉड्स ग्रेस. भगवान ने आवाज़ दी है और मैं मॉडुलेट अच्छा कर लेता हूँ. और मैं रेडियो में सिखाया जाता है ना, यहाँ से बोलना है तो आवाज़ बेस और आ जाए, हाँ जी बताइए क्या है ना. तो ये सब हम सीखते थे वहाँ पर. तो रेडियो का तो बड़ा योगदान रहा है. फिर कहानियाँ में लिखी, इतनी लिख डाली हमने कहानियाँ कि हम 15-10 मिनट में एक कहानी लिख डालते थे. फिर चायपत्ती में चायपत्ती शूट करी बिफोर द डेल्टा वेव आई सपोज. 6 मार्च 2021 को यूट्यूब पे उसे डाला. ओहो. एंड वी स्टार्टेड गेटिंग रिस्पांस. वो बड़ा मोटिवेट. यस. तब हमें लगा कि नाउ देन हमने फिर और लर्निंग ली. फिर हमने एक मिनी वेब सीरीज जो बनाई. करेक्टर्स चायपत्ती में थे वो करेक्टर्स अभी भी इस मूवी में भी है क्या कुछ भी? यस. चायपत्ती में जो कहानीकार बने थे शोभित सुजय, वो बड़े खास हमारे हैं भाई, कमाल के एक्टर हैं. आप तो मतलब मैंने देखा है वो चाहे वो हर हमारे उसमें रहते हैं. उनको कैसे लूज करें, मतलब वो तो हार्ट एंड सोल हैं शोभित जी. तो चायपत्ती में वो कहानीकार का रोल करते हैं. आई विश नेक्स्ट टाइम हम जब आपसे बात करें शोभित जी भी यहीं पे साथ में हो. I asked him if he can come, but he was traveling. तो शोभित का चिंतामणि में भी थे, चायपत्ती में भी थे, डिटेक्टिव बुमराह भी. और मैं उनको वो कैरेक्टर देता हूँ जो सबसे चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो ना उसमें जान फूंकता है. एंड आई थिंक आई हैव सीन हिज कैरेक्टर लाइक वो एक्स फैक्टर लेकर के आते हैं. मैंने हमेशा देखा उनको एकदम लगेगा ही कि ये बंदा जब आएगा स्क्रीन पे मजा आने वाला, कुछ ना कुछ अनुभव होने वाला है. एकदम अग्रीड. आप इसमें भी देखोगे आप देखेंगे जब तक वो मूवमेंट चल रहा है तब तक बड़ा टेंस माहौल. जैसे ऋषभ पंत जब बैटिंग करते हैं, जब तक भले ही सबको पता है, जब तक बैटिंग करते रहते सबको सब डर के रहते हैं कि अभी यहाँ मार देगा वहां मार देगा, लेकिन पूरा मजा आता है उनके बैटिंग देखने में. शोभित का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बड़े खास कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है जो लगभग पूरी फिल्म में है ही. तो और वो एक ना ब्रीदर है पूरी फिल्म के अंदर, क्योंकि जब आप इस तरह कोई फिल्म बनाते हो तो बहुत टाइट चलती है, बहुत टेंशन होता है, माहौल बड़ा उस लेवल का होता है. तो मुझे लगता है कि शोभित विल बी स्पाइस टू द फिल्म. भोजपुरी बड़ी अच्छी जानते हैं वो, तो जो भोजपुरी बोलेंगे उसका ही मजा अलग है. एंड इफ आई टॉक अबाउट सुधांशु द स्टोरी टेलर, सुधांशु द एक्टर, सुधांशु द डायरेक्टर, एंड व्हाट डू यू थिंक अगर आपको किसी एक कैरेक्टर को प्रायोरिटी देनी होगी आप किसको? सर डायरेक्टर तो कभी नहीं बनना चाहता. डायरेक्शन भी डायरेक्शन तो मैंने छोड़ दिया सर. मैंने बोल दिया ये भार तुम ले लो, हमसे ना हो पाएगा. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक डिटेल्स में आप जाते हैं ना, जो डिटेलिंग है वो डायरेक्टर ही कर सकता है. वो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो मैं कर सकता हूँ. तो एक्टर मेरे को बड़ा मज़ा आता है. अगर आपने देखा होगा चिंतामणि में वो जो एक थोड़ा ओपन कैरेक्टर होता है, चाहे चायपत्ती में डिटेक्टिव वो थोड़ा सीरियस कैरेक्टर था,
तो आई प्रेफर फर्स्ट स्टोरी टेलर हम्म बिकॉज उस पर मेरा ग्रिप बहुत स्ट्रांग है. अगर मैं किसी को कहानी सुना के डराना चाहता हूँ मैं डरा सकता हूँ, हंसाना चाहता हूँ हंसा सकता हूँ. रुलाला मतलब मैं मेरी आप रोमांटिक स्टोरीज भी सुनिए. Yeah, and I think on screen, whether you are an actor or comedian like Zakir Khan, आपको क्या कहते हैं हमेशा the way you narrate your story, it's very important. सी एक स्टोरी टेलर जब एक्टर बनता है ना, और स्पेशली जब वो राइटर भी होता है, तो वो कैरेक्टर के ज़्यादा करीब होता है. agreed तो ऐसा पुनीत ने मुझे वहाँ पे बोला था. प्लस जब सीन चल रहा होता है तो मान लो पुनीत को कहीं सपोर्ट चाहिए क्योंकि आपकी बहुत बड़ी टीम होती है वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं मिस हो सकती हैं. तो जब राइटर वहाँ पे होता है तो मिस होने की संभावना और कम हो जाती है क्योंकि वो देख रहा होता है, उसको पता होता है कि मैंने सीन ये सोच के विजुलाइज करके बना रखा है. तो स्टोरी टेलर मैं प्रेफर करूँगा पहले कि ये तो मैं करूँगा ही करूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी करूँगा, कहानियाँ लिखता रहूँगा, सुनाता रहूँगा जो फैंस है फॉलोअर्स है, क्योंकि मैं अभी बोल दूंगा तो हड़कम मच जाएगा. तो लेकिन एक्टर येस आई एन्जॉय एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो आई प्रेफर हम जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मुझे आप अलग अलग किरदारों में देखेंगे. आई लव प्लेइंग कॉमेडी कैरेक्टर्स मोर देन द सीरियस वंस. अगर आप चाय पत्ती. देखेंगे But the audience, but so far audience are liking the serious ones and all. मुझे लगता है कि दोनों जगह मुझे पसंद किया है, लेकिन मैं एंजॉय ज़्यादा करता हूँ कॉमेडी को क्योंकि आप ज़्यादा खुल सकते हो. अब जैसे इस फिल्म में भी मैं जैसे ही ज़रा सा आगे जाता पुनी बोलता ये इतना नहीं खुल सकता है कैरेक्टर, है ना, मतलब पूरा दबा हुआ कैरेक्टर है. तो मैं कहता हूँ यार मैं एक्टिंग नहीं करूँगा पूरी फिल्म में, आप मुझे देखो मौका दिया है. मुझे एक जगह मौका मौका acting का, मौका मैंने दिया. बोला, अब जहाँ जो मतलब करना है इस जेल के अंदर में करो. हाँ मतलब जो जगह मिली हुई है तो वहाँ मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग दिखाई है. लेकिन ये कैरेक्टर ही ऐसा था कि उसका चेहरा ही ऐसे है, मतलब वो चेहरा कुछ बोलता ही नहीं है, सीरियस है, पड़ा रहता है, उदास है. तो समवेयर ऐसे जब कैरेक्टर्स आप प्ले करते हो तो वो चैलेंजिंग भी हो जाता है क्योंकि आप नेचुरली वैसे हो नहीं और आपको उस कैरेक्टर में जाने के लिए उसकी इमोट psyche कैसे करना है को एग्जैक्टली. लेके आना पड़ेगा. तो आई थिंक स्टोरी टेलर देन एक्टर. डायरेक्टर तो सर हाथ जोड़ता हूँ. पर एक एडवांटेज है कि स्टोरी टेलर एंड एन एक्टर, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेट पे स्टोरी जो राइटर है उसको होना चाहिए, so that he can see, he can help, he can see like what he has visualized that is happening or not. क्योंकि जनरली मुझे भी ऐसा फील होता है कि इंडियन सिनेमा में हम को राइटर को तवज्जो नहीं दे पाते हैं. राइटर कहीं आता ही नहीं, कौन राइटर उस हिसाब से होता ही नहीं है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो राइटर इज द कोर, राइटर प्रोवाइड्स द डीएनए ऑफ द एंटायर थिंग. तो वो ज़रूरी है. तो इसलिए ये मुझे बड़ा फ़ायदा होता था कि सेट पे एक्टर तो है ही मेरे साथ, बट राइटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंस. Right now we talked about direction and everything. Where do you think that Bollywood is lacking in the last few years कि उतना traction नहीं मिल पा रहा है? And what are the new things that Bollywood directors should focus on? See again, what I would say, core is storytelling, that is important, and bringing new stories to the audience. अभी क्या हो रहा है, somehow like I feel like Hindi cinema is losing its voice, in the sense it's एक वो डिस्टिंग्विशनेस इज नॉट देयर कि इज दिस हिंदी सिनेमा और सम अदर सिनेमा, राइट. एक जो बहुत अच्छी कहानियां हमने देखी हैं, अगर आप देखेंगे रोमांस से लेके कॉमेडी से लेके एक्शन कहानियां, जो स्टोरी वाज द कोर, बट नाउ इट हैज मूव्ड मोर टुवर्ड्स लाइक किलिंग ही हो रही है अभी आजकल. तो अगर देखा है कटारी उठा के दांत से काट लो, ये सब यही प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग ना बिजनेस, मैं आपको बताया, हाँ. जब तक वो सिनेमा से प्यार होगा ना तब तक आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, Yes. बिकॉज आप उसको फिर दिल से और एंजॉय करके बनाते हो. अभी क्या होता है, लोग बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं कि ये एक्टर ले लेंगे, ये बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे, एक फार्मूला है. हाँ, और देखिए हम ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ उखाड़ लिया इस इंडस्ट्री में. द ओनली थिंग इज वी आर लवर्स. यस. तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं जब कोई अच्छा कंटेंट आता है. सो आई थिंक एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ साउथ की मूवीज़ हिट हो गई हैं, उसमें दिख गया लोगों को ऐसा चल रहा है, तो बस वही वापस वही कैरेक्टर्स बनाओ, रिहैश करो 200 लोगों को और कटारी निकालेंगे और काम बन जाएगा. तो वो अब कहीं ना कहीं मलयाली फिल्में आप देखिए, छोटे बजट की फिल्में बनती हैं, अमेजिंग. छोटे बजट की फिल्में क्या अमेजिंग फिल्म्स हैं उनकी, हर फिल्म में कुछ अच्छा कोई बड़ा कहानी एक्टर नहीं है उसमें. आप खुद देख लीजिए जो रिसेंट उनकी जितनी भी हिट हुई हैं. तो
द रीजन बीइंग क्योंकि आप कंटेंट पकड़ के चल रहे कंटेंट भी, और जैसे आपने बोला वॉइस इन द सेंस, सी व्हाट इज हैपनिंग, इट्स ऑल व्हाट आई कैन सी इज रीमेक्स एंड सीक्वल्स. यही ट्रेंड शुरू हो गया है. यहाँ तो रीमेक हो रहे हैं, यहाँ सीक्वल हो रहा है, ओरिजिनल कंटेंट का है. And if I talk about like in Baida, there are not that big names who generally come in Bollywood movies and all. Do you think this was a risky project that कि ये चलेगा नहीं चलेगा and all these things? सर जब आपकी स्टोरी टेलिंग स्ट्रांग होती है, हमने पहले टेस्ट कर लिया था. Yes. हमने जब चायपत्ती बनाई, रिएक्टिव बूमरा, बड़े कम बजट की फिल्में थी वो, या वेब सीरीज थी, बहुत ही कम बजट की. ना हमारे पास कोई रिनाउंड डीओपी था, ना हमारे पास कोई रिनाउंड एक्टर था, मैंने खुद ही किया था. तो और हमारे कुछ जैसे शोभित, ही इज अ फाइन एक्टर. तो हमारा ये मानना है कि अगर आपकी स्टोरी सॉलिड है ना, तो आप कोई भी कैरेक्टर लेके आओ ना, चलेगी ना. मैंने आपको मलयाली फिल्मों का एग्जांपल दिया. हाँ. वो सब नए एक्टर्स को लेके आते हैं जो, और वो तो कपड़ों पे भी ध्यान नहीं देते हैं. अगर आपने कोई एक फिल्म देखी हो, मैं वो चपत्ती जैसी फिल्म थी, क्या नाम था उसका? रोमांचम. रोमांचम फिल्म देखिएगा, वो कुछ चपत्ती जैसी सिमिलर है, हाँ, लेकिन उन्होंने theme. थोड़ा एक्सटेंड किया है. कुछ नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, जैसे नॉर्मल गांव में लोग बैठते हैं, लुंगी है और बनियान है. पहना ही नहीं है, वो चल रहा है, कहानी सॉलिड है. सो प्रॉब्लम ये है कि हमें डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी. जैसे आपने कहा कि जेन जी जो कंटेंट खोज रही है, अब जेन जी ये नहीं देखना चाहती है कि कोई बड़ा एक्टर आ रहा है और वो उसको, दे वांट टू सी समथिंग अमेजिंग. भाई मैं पहले मिनट से मेरे को स्टोरी पकड़ ले और मैं एंड में जाके बोलूं वाओ व्हाट अ कॉन्सेप्ट. अब आपने बोला डार्क, कौन है एक्टर? डू वी नो द एक्टर्स इन डार्क? नो. स्ट्रेंजर थिंग्स, डू वी नो द एक्टर्स इन स्ट्रेंजर थिंग? नो. Still people connected. Yes. When we started our conversation, we talked about that movies that were released ahead of times. ठीक है, and in the same way we are talking about storytelling and everything. In the same way, there was a movie रणवीर कपूर की तमाशा. उसको भी ऑडियंस बहुत कनेक्ट किया था. लाइक आई हैव अ फ्रेंड अयान, उसने तो मूवी देख के जॉब छोड़ दिया था. मतलब ऐसा हमें क्या इस मूवी में भी वैसा कुछ मिलेगा कि लाइक समथिंग की तमाशा की तरह कुछ एकदम अलग सा स्टोरी टेलिंग हो जा रहा है एंड पीपल आर कनेक्टिंग विद इट. एंड वो मूवी एज फार एज आई रिमेंबर थिएटर में उतनी नहीं चली थी, बट बाद में OTT पर रिलीज हुई, बहुत चली. मैं खुद OTT पे ही देखी थी वो तमाशा. देखिए मैं ये कह सकूंगा कि जो फिल्म मेकर्स हैं, जो अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा मोटिवेशन हो गई. क्योंकि फिल्म बनाना बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है. क्योंकि पहले तो इतनी बड़ी टीम को हैंडल करना है, इतना बड़ा पैसा लेकर आना है, फिर आपको फिल्म रिलीज करनी है, उसको प्रमोशन देना है. कई अच्छी फिल्में तो प्रमोशन की वजह से दब जाती हैं, तो उतना बड़ा पैसा होता नहीं प्रमोट करने का. तो वन will be a motivation if we were able to garner that much of attention and the audience give us the kind of rating we are looking at. And of course we'll be motivating them. Yes, you can also come forward and create a story. Yes, थोड़ा effort लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, but आप अपना content लेके आ सकते हो. Yes. इंडस्ट्री ओपन है. यूजुअली हम ऐसा सोचते थे कि इंडस्ट्री शट है, नहीं, नहीं घुस सकते उसके अंदर. ऐसा नहीं. हाँ, ऐसा अगर नहीं. आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ प्लेट में सज के नहीं मिलता है. तो यहाँ पर लोग हैं जो आपके अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे. वन. सेकेंड थिंग इज जो कॉन्सेप्ट है जो मिस कर रहे हैं. जब मैंने ये ट्रेलर जब बन रहा था, शायद इन्हीं के कोई रिलेटिव थे, ये बस मेरे ख्याल से चेक कर रहे होंगे उसके डिटेल्स अपने लैपटॉप पे बैठ के. उन्होंने पीछे बस ऐसे देख लिया. हाँ, yes. तो उनका पहला स्टेटमेंट ये था, Agreed. भारत में भी मतलब इंडिया में भी ऐसे कॉन्सेप्ट बनने लगे क्या भैया? एंड हिज एज ग्रुप वाज जेन जी. yes. So what happened, like अभी ट्रेलर पे काम चल रहा था, तो मैं ऐसे ही ऑन था, तो he didn't knew कि ये यही है हमारा प्रोडक्ट, ये हमने like this is the what we have made. तो just as an outsider he watched and he was like कि wow, कहते ये कौन सी है, क्या है? मैंने कहा this is what we have made. And he was like कि बिलीव नहीं कर पा रहे. ये बैठे हुए आदमी घर की मुर्गी दाल बराबर कि वो ये बना सकते हैं. नहीं, so you guys are making a statement that Baida can be a stepping stone in sci-fi culture in India. Of course. Sci-fi and storytelling culture. लेकिन कुछ sci-fi अच्छे भी हैं. Yes. मिन्नल मुरली थी एक. हाँ, सुपर हीरो जॉनर. हम ये नहीं कहेंगे कल्चर हम सेट कर रहे हैं. हाँ. It was a good movie. Right. बट यस, हिंदी सिनेमा की यदि आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से पिछले
8-10 सालों में हमने ऐसा कोई कंटेंट हमारी नज़र में नहीं देखा हाँ। है हमने, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वही, हम मैं उसी के लिए जाना चाहता हूँ, मेरी कहानी सुन लीजिए आप। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप वो पहली बार ही सुन रहे यस, होगे। मतलब हमारे नो-हाउ में तो नहीं है। तो हम वो कहानियाँ ही लिखते हैं ऐसी, हुँ। वो अजीबो-गरीब कहानियाँ लिखते हैं जो लोग, तो ये कहानी अजीबो-गरीब है, लेकिन बाँध के रखेगी, मज़ा आएगा। यस। और जैसे कि हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एचआर हमसे पूछती है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड यू सी योरसेल्फ आफ्टर बाय द इन द नेक्स्ट 5 years. क्रिएटिंग मोर अमेजिंग स्टोरीज और ऊट-पटांग फिल्में लेके आना जो लोगों ने सोचा भी ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट लोगों को दिखाना जो पूरे वर्ल्ड में कहीं लोगों ने नहीं देखा। हम अपना पैरामीटर हॉलीवुड नहीं लेते हैं, हुँ। हम अपना पैरामीटर लेते हैं कि भाई कंटेंट ही ऐसा हो कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कंटेंट बना ही नहीं हो, सबके लिए कुछ फ्रेश हो, Yes. कुछ नया हो, इंडिया से भी कुछ बाहर जाए, लोग कहें वाओ, नाउ यू नो दे आर आल्सो मेकिंग समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द बॉक्स। यस। सो एंजॉयिंग सिनेमा, ऑन ग्राउंड चिकम चिल्ली करना, मजे करना, ये एक्शन बोले मैं एक्टिंग करूं, कहानियां सुनाऊं और एंजॉय करें सब प्रोसेस Yeah, को। making more content, yes. Definitely. In fact, like I was checking some Brazilian Twitter channel has also Yeah, they have supported. they have appreciated, like they saw, I don't know, somehow they saw and then they posted some Brazilian Twitter channel. You imagine, so It will be a big thing that Brazilian people will be watching the Gorakhpur kind of content Ah. and all. They're able to relate to it. relate to it. We are sure that they're able to relate. And I heard that there are some Bhojpuri twist also in this movie. हाँ, भोजपुरी है एकदम भोजपुरी है। बढ़िया भोजपुरी मिली है हमें आपके। यूजुअली क्या होता है कि हमने वो एसेंस बचा के रखा है। जब वो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक ऐसे विलेज में जाता है जो गोरखपुर का एक खास विलेज है, तो जहाँ लोग जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे लोग अपना जो है सूटी खा रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे कर सूट बूट पे कोई बैठा है, उसको देख रहे हैं। कई बार तो ऐसा रैगिंग चल रही है। अच्छी, अगर आपने अच्छा परफ्यूम लगा रखा है तो लोग अच्छे से हाँ, सुने बढ़िया गमक रहे हैं। कहाँ से लगाए हैं सोच रहे हैं, तो हमने वो फील दी है। यस। तो एंड यूजुअली क्या होता है, अगर आप शहर से जाते हैं तो वहाँ लोग ना आपसे थोड़ा बात करने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल भी करते हैं, थोड़ा दिखाने के लिए कि हम भी नॉलेजेबल हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब हम गांव में रहते हैं लेकिन set है एकदम। तो हमने वो पूरा दिखाया है, मतलब जो, क्योंकि मैंने जिया है, मैं हर साल गांव जाता हूँ, मैं आज भी रिलेटिव्स मेरे वहाँ रहते हैं, मेरा घर है, तो मैं जब हम शहर से वहाँ जाते थे तो जो लोकल लोग होते थे वो हमसे पूछ अंग्रेजी में जरा तुम एंटरटेनमेंट की स्पेलिंग बताओ। जैसे मुझे लगता था कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ वहाँ शहर जाके और मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ। तो मेरे से यही पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में डिफरेंस बता दो, तो मुझे समझ में आता था भाई अंग्रेजी में क्यों? They can ask me science, they can ask me anything else, and there are more subjects। तो वो एक जो एक साइकोलॉजी है कि भाई वो आया हुआ तो अंग्रेजी घिसेगा और हम भी थोड़ा दिखाएंगे कि हम भी बहुत अच्छे पढ़े हुए। जैसे हमारे कुछ चाचा वगैरह होते थे जो अच्छे पढ़े लिखे होते थे, तो अपना नॉलेज भी दिखाते थे, तुम यहाँ गलती कर गए ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस नहीं है। मतलब अपने आप को, अरे क्या पढ़ रहा है तुम्हारा लड़का शहर में जाके तो वो हमने फील किया है। वी हैव यूज्ड यस। दोज काइंड ऑफ मोमेंट्स इन द फिल्म, तो लोगों को मजा आएगा जो लोग यूपी के हैं या जो लोग अपने गांव से खुद को रिलेट कर सकते हैं। Yeah, and I think this movie being shot in Gorakhpur, and it's storytelling, sci-fi, कुछ भी बोल लो, like people are gonna connect this movie. This is the main motto of this movie, that you going to Gorakhpur and shooting this film. Right. And how important do you feel if this movie work, then the future of sci-fi in India is gonna be huge. But what if it doesn't work? See, I'm known for sci-fi, detective, horror, thriller। हम तो लिखते आए पिछले 5-6 सालों से, हम तो यही करेंगे, चाहे ये चले चाहे ना चले, ठीक है? राइट। हमें मजा आता है, हमें मजा आता है। तो हम तो बनाएंगे, ठीक है? अब अगर 100 लोग भी आके बोल देते हैं वाह भाई मजा आ गया, हम बनाएंगे। वो 100 लोग हैं हमारे पास, हमने हमारे जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वही पीछे पड़े रहते हैं, अरे सर ये कहानी इतनी अच्छी है, इसको उसमें फिल्म बदल दीजिए। अब उनको समझा नहीं सकता कि एक फिल्म बनाने के लिए पैसा कहाँ से आए, It's a process। उतनी एनर्जी कहाँ से आए। बट दोज फैंस एंड फॉलोअर्स जो हमारे हैं वो तो बहुत एंजॉय करते हैं, तो हम उनके लिए बनाते रहेंगे जब तक मुझे लगता है कि अप्रिशिएट क्यों नहीं करेंगे। अगर आपने एग्जाम्पल लिया जैसे डाक का था, डाक हम लोग देखते हैं, हमने पंचायत देखी, बड़ी सिंपल स्टोरी, हाँ। तो लोगों ने कनेक्ट किया, लोग एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है हर कंटेंट के लिए ऑडियंस बैठी है। एक मार्केटिंग का एक जार्गन होता है कि लोगों को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, है ना, मार्केटियर बनाकर उनको देता है कि भाई ये तुम्हें चाहिए, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें साई-फाई चाहिए, तुम्हें सुपरनेचुरल चाहिए। हिंदी सिनेमा में नहीं है उस तरह का एक कॉन्सेप्ट जो होता है, वो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि लोग डरते हैं। क्योंकि हम तो नहीं डर रहे हैं ना, क्योंकि हमें तो बिजनेस करना ही नहीं है,
तो हमने तो बना ली। यूजुअली लोग डरते क्यों हैं, क्यों नहीं आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट? ऐसा नहीं है कि लोगों के पास स्क्रिप्ट नहीं है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के पास इंटेलेक्ट नहीं है, सबके पास सब कुछ है। दे आर स्कैर्ड कि भाई हम इतना पैसा लगा तो देंगे, रिकवरी कैसे होगी? दिस इज देयर, दे आर स्टक। हमारे पास वो लिमिटेशन नहीं है। डायरेक्टर हमारे पास है, राइटर मैं खुद हूँ, एक्टर मैं खुद हूँ, ठीक है। अब सेट पे हमारे पास गाँव है, हमारे पास लोग हैं जो हमारी मदद कर देते हैं, ज़मीनें हैं, वहाँ सेट पे हम शूट कर लेंगे, ठीक है। डायलॉग भी मैं ही लिख लेता हूँ, स्क्रीन प्ले मैं ही लिख लेता हूँ, कहानी मैं ही लिख लेता हूँ। और उसके बाद क्या बचा? आर्ट डायरेक्शन में हम आगे बढ़ हाँ, आर्ट डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक पैशन होना चाहिए, और हमें तो बनानी है। मतलब हाँ, चले ना चले, ठीक ठाक भी अप्रिशिएशन मिलता है, नहीं मिलता है, हमारे फैंस देते नहीं मिलते हैं, हमें प्रोसेस में मजा आता है। प्रोसेस समझ आता है। इसको बिजनेस के हिसाब से नहीं, इट्स मोर ऑफ अ पैशन प्रोजेक्ट। तभी ये भी नहीं कि एक अपने डोमेन में सीमित रह के बस मैं इतना काम करूंगा, ऊपर से नीचे वी आर इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग। टेक्निकल टीम बहुत सॉलिड लगाई है इसमें, हमारे हाँ। पास सारी टेक्निकल टीम रिनाउंड थी। यस, And I have been watching your Instagram, and itna samajh mein aaya that you are very spiritual. And at this point of time in your career, how important do you feel that being spiritual is helping you? सर, I'll say every concept is because of spirituality. स्पिरिचुअलिटी क्या करती है आपको ना, जो एक बंधे, स्पिरिचुअलिटी रिलीजन नहीं है, पहले तो हमें कंफ्यूज ना करें। स्पिरिचुअलिटी एक स्टेट है जिसमें आप कॉन्शियस हो जाते हो। जैसे मैं छत पे बैठता हूँ, मेरा सुबह का सेट होता है छत पे बैठना, चाय पीना, पक्षियों को देखना, खुले आसमान को देखना, शाम को जब वहाँ से कई सारे तोते जा रहे होते हैं ग्रुप में, उनको देखना, नीचे कुछ गलियारे कुत्ते खेल रहे होते हैं, उनको देखना कैसे आपस में खेल रहे हैं। सो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी आपको नेचर से कनेक्ट करती है, खुद से कनेक्ट करती है। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, देन यू स्टार्ट परसीविंग रियल एनर्जीज। सो जो कॉन्सेप्ट है, जो भी आप वर्ताव देखते हैं मेरा, या जिस तरीके से बातचीत करता हूँ, या जिस तरह से मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी हैज़ हेल्प मी अ लॉट। सो जो स्टेट है ये चलता रहे, मैं नेचर के करीब रहूँ। मैं साधु संतों की संगति में बहुत रहा हूँ, जैसा कि आप देख भी पाते होंगे, क्योंकि मेरे फादर खुद सेंट हैं, तो मैं बचपन से ही मेडिटेशन वगैरह में बड़ा इन्वॉल्व रहता था। ये तो देख मेरे फादर से मिल चुके हैं। वो आप रात के 2 बजे उठिए, वो ऐसे मेडिटेट कर रहे होंगे। आप सुबह 6 बजे उठिए, वो सीधे बैठे मेडिटेट कर रहे होंगे। अगर आप उनको बैठा लीजिए कि आप आइए हमसे थोड़ी बातचीत करें, बोले मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं मेडिटेट करके जा रहा हूँ। तो आई थिंक being spiritual is something which everyone should follow. It will help them connect with themselves, with the nature, with the true universal energy जिसे हम बोलते हैं, और वो गाइड करेंगे। And talking about some real life issues, अभी हमने देखा कि सैफ अली खान को स्टैप किया गया उनके घर के अंदर। रिसेंटली बाबा सिद्दीकी को बॉम्बे में भी उनको अटैक किया गया, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया। आप बॉलीवुड स्टार्स के ऊपर इस तरह के थ्रेट्स को देख के क्या बोलना चाहते हो? सर देखिए, वो थ्रेट्स तो हर किसी के ऊपर रहते हैं, आप और घटनाएं हर जगह होती हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। अब इसका सिर्फ एक ही चारा होता है कि आप थोड़े केयरफुल रहें, एंड यू ट्राई बी मोर जिसे हम बोलते हैं गुम रहना, थोड़े नीचे रहकर चल सकते हैं। बाकी इन पे किसी का काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने कैसे देखा होगा कि गुड़गांव नोएडा में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। रात को गए हैं, 2 लोग बीच बस गाड़ी आपस में बस जरा से टकरा गई, निकले, एक दूसरे का सर फोड़ डाला। तो हमने कई सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो नॉर्मल भी होती हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कब कौन कैसे रिएक्ट करेगा, यू नेवर नो। चाहे आप सैफ अली खान हो, चाहे आप नॉर्मल अमित हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, दोनों के लिए बराबर थ्रेट है। जो अमित है वो भी शाम को अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, ऑटो करता है, मेट्रो पकड़ता है, ही इज एक्सपोज टू एन नंबर ऑफ पीपल। कोई वहाँ पे ऐसा है जो गुस्से में है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, उसके साथ वो टक्कर खा गया, उसने उसे 2 चपेट वहीं दे दी, दोनों बीच मारपीट हो गई, किसी को ज़्यादा चोट लग गई। सो इट इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द कंट्रोल। Yes, there are lot many factors involved. How we cannot control. Definitely. इसका सिर्फ एक ही चारा है कि आप भगवान से आपकी सेफ एंड साउंड रहें, right. और आप पर कोई ऐसी विपत्ति ना आए। that Saif Ali Khan Yes, Definitely. we will. So the prayers are with him. So it should not happen with anybody. That's why Yes. it is not only with the stars we believe in. आप चाहे पुनीत, चाहे हमारे जितने भी मित्रगण हैं, उन सबके लिए हम यही दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं कि कुछ किसी के साथ कुछ ऐसा गलत ना हो। उनके लिए हमारी प्रेयर्स हैं। हम अच्छी एनर्जीज उनको भेजते हैं, जो उनके साथ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए, एंड देन वी प्रे ही रिकवर्स फास्ट। And Puneet, coming back to Baida, and how do you differentiate sci-fi and time travel
and supernatural kind of scenes and all? See, sci-fi is something like which has specific laws which you already know, right, behind it. So it comes under the category of science. There is some phenomena जिसका हमें पता है कि this is a formula जो लगाएंगे तो ये phenomena है. Supernatural I feel is that domain wherein हमें पता है कि phenomena है, पर अभी हम उसके पीछे के laws ढूंढ नहीं पाए हैं, तो वो supernatural में चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक सेइंग थी किसी की कि कोई चीज़ है जो हमें अभी मैजिक लगती है, वो हमें मैजिक क्यों लगती है, क्योंकि हमें उसके पीछे का अभी तक पता नहीं है कि लॉजिक क्या है या साइंस क्या है. तो वी डिफाइंड इट एज मैजिक और सुपरनैचुरल. तो इसमें साइंस तो है ही, वेदा में देयर इज साइंस, देयर आर कॉन्सेप्ट्स, देयर वुड बी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पैरेलल यूनिवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स or some other dimensions, but there are supernatural phenomena also. Some phenomena जो मैं अभी बता नहीं सकता, but spoilers हो जाएंगे. But these are phenomena जिसके बारे में हम अभी मे बी नहीं उस उतनी रिसर्च नहीं हुए, नहीं जानते, तो हमें अभी जादू लगता है, मैजिक लगता है. Any extraordinary technology that we might, बोलते नहीं एलियन सिविलाइजेशन कभी आ जाए यहाँ पे, हमें एलियंस नजर आ जाए, तो हमें वही लगेगा कि इट्स मैजिक, because we cannot decipher. And my last question will be from both of you. What different is in Vaida that audience are gonna spend their money and go to theaters and watch this movie? So the first thing I want to say is the kind of intriguing story. They may have not experienced anything like this in the past 8 to 10 years, which we can vouch for. The second one is the treatment. आपने अभी रिसेंटली मेरे फर्स्ट ग्रुप में देखा होगा वो झोपड़ी, वो उसमें कुछ हमने आपको मूर्ति वूर्ति जो कुछ छोटी मोटी आपने देखी होगी, तो जो एक ट्रीटमेंट है, और हमने रियल एनवायरनमेंट में से शूट किया. हमने स्मोक क्रिएट करके कोहरा नहीं बनाया, हमने कोहरे का वेट किया फिर उसमें शूट किया. तो एक रियल जो ट्रीटमेंट एनवायरनमेंट होता है, जो फील कर पाएंगे आप. अगर मैंने आपको जंगल में मेरा कैरेक्टर जा रहा है तो आप फील कर पाओगे, आप खुद से जंगल में चले. हाँ, कोई वो नहीं है कि वो फीलिंग मैं आपको दे दूंगा. थर्ड वन इज the kind of new concepts which people have not explored, they may not know. जैसे आपको डार्क का पता है कि एक टनल से बाहर निकले और हम दूसरी दुनिया में चले गए, वो एक कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने एक्सप्लोर किया था. हम यहाँ पे कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट देने वाले हैं कि ये भी कुछ ऐसा होता है, और इसमें तो हमने कुछ उसकी बियॉन्ड भी गए हैं. इट इज़ नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू टाइम और पैरेलल यूनिवर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बियॉन्ड डायमेंशंस एज वेल, जो अभी तक एक्सप्लोर कहीं भी नहीं हुआ है. So we are talking about something on those. Yes, but along with science, like in terms of concept, sci-fi, supernatural या जो भी concepts है, but still it is a story of an individual also. Yes. That is important. This is a story of an individual and his journey, more of his redemption journey. तो ये भी चीज़ है. तो हम साइंस और ये सब भी है, पर एक एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन कनेक्ट है, तो उस हिसाब से भी इट्स अमेलगमेशन है. गोरखपुर का मज़ा लेना मत भूलिएगा. हाँ, भोजपुरी आपको वहाँ मिलेगी. भोजपुरी कुछ अमेजिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे जो आपको मज़ा दिला देंगे, और जो लोग विलेजेस में जाते हैं और देख चुके हैं, जो फील कर चुके हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, फील कर पाएंगे उनका. पूरी मूवी का एक कोई भी डायलॉग भोजपुरी में जो आप हमारे ऑडियंस को अभी बताना चाहते हो, कोई भी डायलॉग भोजपुरी में. ठीक है, मैं दे रहा हूँ आपको. समोसा नहीं, वो गमक रहे. उसमें क्या है कि ये तो मैंने आपको बता दिया है, तो एक वो है कि 2 सीन्स हैं. जीप वाला एक तो है, एक पूरा सेटअप है वहाँ पर. समोसा शाम को क्या होता है गांव में, शाम का 2 काम होते हैं लोगों के. सुबह 3 बजे उठ जाना और 10 लोग मिलके खेत में, रात को 3 बजे बताना लोग टहलते हैं, और शाम का काम होता है, हम भी जाते थे. शाम को सभी लोग बैठ गए और समोसा और चाय. यस, ये एक बड़ा ट्रेंड होता है, स्टेपल है ये. तो वहाँ पर हमने वही सीन बनाया कि चौराहे पे लोग बैठे हैं, वहाँ ना बात कहीं चलती है, मतलब बड़े बड़े लोग भी होते हैं, कुछ लोग आपस में एक दूसरे की मजे भी ले रहे होते हैं. तो एक जो है गांव का थोड़ा बदमाश और शरारती जो है जा रहा है, कह रहा है यार तोरा समोसा मजा ना रह गई ना, थोड़ा आलू तन ढेर डाला यार, मजा नहीं आ रहा. तो वो ये बोलता है समोसे वाले को, यानी तुम्हारे समोसे में मजा नहीं रह गया है ना, आलू तुम डालते ही नहीं उसमें, तो खाली ऊपर ऊपर कपड़ी दे रहे हो तुम मुझे. तो वहीं दूसरा जो बंदा बैठा हुआ जो मजे लेता है सबके, तो बोल रहा है उसमें
खोआ डाल के नहीं दिलवाते तुम्हें समोसे में 5 रुपए के समोसे में 5 रुपए समोसे, तब वो उसको बोलता है चप्पल ही नहीं, और माँ तो मुंह खिया जाए। मतलब इसका मतलब होता है कि चप्पल निकालूंगा और इतना मारूंगा कि जैसे चप्पल नीचे से नहीं घिस जाता है इस तरह मुंह घिस जाएगा। सो वी हैव यूज्ड दोस काइंड ऑफ स्लैंग्स। सो सुपरनैचुरल साथ साथ मजा भी है, एक हमने लोकल कल्चर को भी एक्सप्लोर किया है, थोड़ा मजा है, फील करेंगे। तो आई थिंक जो विल सी एक हमारा एक ट्रेडिशन भी रहा है कि हम एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट को भी जरूर हाईलाइट करते हैं, चाहे वो डिटेक्टिव बुमराह में सितार था, इसमें सारंगी है। And Puneet, can you please state the difference between horror films and sci-fi? Because most of the audience connect sci-fi with horror films and all. And उनको लगता है कि नहीं यार ये horror movie हम नहीं जाएंगे, डर लगता। नहीं, see, both are very separate. I think we should be very clear. This is horror is something which is like, उसमें हमें पता है कोई evil forces हैं, right? Again evil forces कुछ, तो horror is a very different genre. वो घोस्ट हैं, आत्माएं हैं, ये चीजें हैं, तो वो एक अलग किस्म का जॉनर है। दिस इज नॉट दैट, दिस इज हॉरर नहीं है, हम हाँ, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, 10-12 साल के लोग फैमिली के साथ जा देख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा मिस्टीरियस एनवायरनमेंट रहेगा, Yes. मतलब कुछ ऐसा नहीं बच्चे डर जाएंगे, ऐसा नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, अगर लोगों ने तुम्बाड़ को एंजॉय किया है, आप फैमिली के साथ जाके देख सकते Yes. हैं। कोई भी ऐसा क्रूड पोर्शन नहीं होगा जिसको देखने के बाद कोई शॉकिंग कंटेंट नहीं होगा जिसको देखने के बाद किसी को मानसिक या साइकोलॉजिकल नहीं, ऐसे इट्स इंट्रिगिंग, इट्स इंटरेस्टिंग, इसमें कुछ वो नहीं है जो आप परिवार के साथ नहीं जा सकते, माहौल जरूर है, मजा आएगा, बट इट्स वेरी क्लीन सिनेमा है, हम लोग को क्लीन ही बनाते हैं जो पूरे परिवार के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। 21st March is the date when Baida will hit the theaters. And सुधांशु, और कुछ लास्ट लाइंस आपको बोलना हो अपने ऑडियंस के लिए? पुनीत आपको भी भाई जाकर देखिए, मतलब कंटेंट अमेजिंग होगा, ये तो मैं बता सकता हूँ। आपके 2 घंटे खराब नहीं होंगे, और अगर खराब होते हैं तो कोई बात नहीं, अगला कंटेंट दोबारा देख लीजिएगा। नहीं खराब नहीं होगा। मैं बस यही बोलना चाहूंगा, जो इतने टाइम से जो अभी हम सुनते आ रहे हैं कि वी नीड समथिंग डिफरेंट, कुछ हमें स्टोरी देखनी है, कहानी देखनी है, हमें नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है और कि जो लोग कह रहे हैं हिंदी सिनेमा में आप कुछ, हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे जैसे क्रिएटर्स हैं। यस, अब हम ये भी बता दें कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट लेकर आने की प्रोग्रेस में होंगे भी, और मे बी हम बाय द वे 21st मार्च को आईपीएल, 21st 23rd को आईपीएल भी स्टार्ट हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या होता है कि जब आपको सिनेमा, जो लोग लवर्स होते हैं, तुम्बाड़ री रिलीज हुई थी, है ना, तो अगर कंटेंट में मजा आ रहा है आपको तो आप देखने जाओगे, और आईपीएल का टाइम होता है एक सेट, आप उस टाइम पे मैच देखते हो, तो आप सिनेमा आराम से मेरे टाइम पे जाके देखना ना, मेरी सुबह से लेके शाम तक के हमारे शो टाइमिंग्स होंगे, आप कभी भी टाइम मिले जाकर। या डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बोथ ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू।